Hello students, welcome again in my class. As you know, in last class we have started GOC General Organic Chemistry, and in this class we will see second part of GOC General Organic Chemistry. In last class we have studied about homolytic cleavage. We have done homolytic cleavage or homolytic bond breaking. Okay. Homolytic cleavage gives us a species with single electron pair, which is called free radical. Free radical. होमोलाइटिक क्लीवेज से एक स्पीशीज बनती है जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एटम पर। इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल स्पीशीज बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। हम पहले पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। और फ्री रेडिकल्स का जो स्टेबिलिटी होती है रेडिकल्स की, वो भी हम देख चुके हैं। सो इन दिस क्लास वी विल फर्दर स्टडी अबाउट second type of cleavage, that is heterolytic cleavage. So students, as by name we can see or we can predict that in this cleavage bond will break hetero means different, or we can say in not a proportion or not an equal. Okay, कि जो heterolytic cleavage होगा उसमें for let us consider this example, this is a covalent bond between two atoms A and B. So if there is heterolytic cleavage, then the electron pair of this bond will move either to this atom, or we can say either to this atom. So in heterolytic cleavage we can say electrons of bond pair move to either of one atom. किसी भी एक एटम पर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। तो you can see that here we are representing the movement of electron of this bond by full headed arrow. यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शो कर रहे हैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक फुल हेडेड एरो से शो कर रहे हैं, क्योंकि पूरा के पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड पेयर के, both electrons or we can say pair of electrons are shifting towards one atom. That's why the heterolytic cleavage is represented by full headed curved arrow. Full headed arrow. And as we have seen, हम देख चुके हैं कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज था, in homolytic cleavage the homolytic cleavage is represented by half headed arrow. हाफ हेडेड कर्व एरो से हमने वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शो किया था, बिकॉज वेयर द electrons only single electrons moves to one atom and the other single electron of bond pair is moving towards another. वहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पर तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर शिफ्ट हो रहा था, मूवमेंट कर रहा था। इस वजह से हमने वहां पर जो होमोलाइटिक क्लीवेज था उसको हाफ हेडेड एरो से शो किया था। हाफ हेडेड arrow. So again in heterolytic cleavage you can see कि electron of bond pair move to either of
वन एटम, या तो राइट साइड वाले एटम पर मूवमेंट होगा या फिर लेफ्ट साइड वाले एटम पर मूवमेंट होगा। So student, in case of carbon, if we see the heterolytic cleavage, as we have seen homolytic cleavage in case of carbon, हमने कार्बन के केस में homolytic cleavage को देखा था, फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए थे और स्टेबिलिटी उनकी एक ही थी। उसी तरह you will see heterolytic cleavage in case of carbon. Okay, so if we will consider an example, CH3 and that is an atom attached with carbon is X। यहाँ पर एक एटम है X जो कार्बन से अटैच्ड है। ओके, सो if there is heterolytic cleavage, there may be two type of possibility that depends on electronegativity of atoms। अगर यहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो वो डिपेंड करेगा कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, मीन्स विच एटम्स हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो वी विल सी बोथ टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज द atom attached with carbon has more electronegativity, so the electrons of this bond will shifted towards this atom। अगर कार्बन से जुड़े हुए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो जो बॉन्ड इनके बीच में, कार्बन और इस एटम के बीच में, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे इस एटम की ओर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सेकंड केस में क्या होगा, if the electronegativity of carbon is more than attaching atom, जो कार्बन है यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, द बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ दिस बॉन्ड विल शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन। सो हियर टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर टू टाइप्स के हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो सकते हैं, एक तो अवे फ्रॉम द कार्बन एंड टुवर्ड्स द कार्बन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हियर अवे फ्रॉम द कार्बन, कार्बन से दूर हो रहा है, जबकि यहाँ पर टुवर्ड्स कार्बन, कार्बन की ओर हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, आगे पॉसिबिलिटी में देखते हैं। हियर CH3 प्लस एंड प्लस X माइनस, टू टाइप ऑफ स्पीसीज फॉर्म होंगी। यहाँ पर क्या होगा, CH3 माइनस प्लस X प्लस। हियर आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ टू टाइप ऑफ स्पीसीज, यहाँ पर भी टू टाइप्स की स्पीसीज फॉर्म होंगी, यहाँ पर भी टू टाइप्स की स्पीसीज फॉर्म होंगी। लेकिन व्हाट इज द मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस इज दिस, हियर कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कार्बन पर है, और हियर कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर अगर वी विल सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स or valence electron present on carbon, then we can see here carbon has sextate। यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जबकि हेयर यहाँ पर क्या होगा, कार्बन हैज ऑक्टेट, यहाँ पर कार्बन के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन नेगेटिव चार्ज्ड कार्बन एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ओके, सो दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्पीसीज विद 6 इलेक्ट्रॉन और सेक्सटेट इज कॉल्ड
carbocation. Carbocation and negative charge species of carbon with octet or 8 electrons is called carb anion. So here in heterolytic cleavage there may be two type of species. First is carbocation or carbanion, depending upon the difference of electronegativity of कार्बन एंड अटैचिंग एटम की जो कार्बन और उससे अटैच एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसके बेस पर यहाँ पर टू टाइप की स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, दैट इज कार्बोकेटायन एंड कार्ब anion. Now we will see both types of species carbocation and carbanion one by one. So first of all we will taking carbocation. So you all know that carbocation is a positive charge carbon with sextet or 6 electrons. So we have taking a carbocation called methyl carbocation. First of all we are discussing about its hybridization. इसका hybridization क्या होगा? इसका hybridization होगा sp2 because it is forming 3 sigma bonds and geometry will be trigonal planar. Trigonal planar. Positive charge, hydrogen and hydrogen, trigonal planar. This is the geometry of carbocation. Now we will see stability. The most important thing of this topic is stability. What is the stability of carbocation? So we will draw 3 types of carbocation, 1 degree, 2 degree and 3 degree. So CH2 CH3, this is 1 degree carbocation. This is ethyl cation or ethyl carbocation. Which is 1 degree carbocation, or we can say primary carbocation. Next one is CH3 CH3. This is isopropyl carbocation. Isopropyl carbocation, which is 2 degree or secondary carbocation. And next one is 3 degree carbocation, that is tertiary butyl carbocation. Tertiary butyl carbocation, which is a 3 degree carbocation. So we have to
study or we have to see the स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटाइन की किस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, किस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी. सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव सीन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. हमने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी थी. वहाँ पर हमने देखा था कि more CH3 group, more methyl group attached to a carbon provides more electron. इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप किसी कार्बन से अटैच होंगे वो CH3 ग्रुप उस कार्बन को उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे. सो इन 3 डिग्री कार्बोकेटायन, in this case 3 methyl groups are attached to this positive carbon or carbocation, so they provides more electron density to this carbocation. Here in 2 degree carbocation only 2 methyl groups are there which provides electron density to this carbocation, and here only one methyl group is attached to this carbocation which provides electron density to this carbocation. So here 3 methyl groups providing electron density or electrons towards this carbocation, and here only 2 methyl group provides carbocation electron density to carbocation, and here only one methyl group providing electron density to this carbocation. That's why 3 degree carbocation will be more stable than 2 degree and then 1 degree. So the stability is 3 degree is more than 2 degree is more than 1 degree. So this is the order of stability of carbocation, that 3 degree carbocation is more stable than 2 degree and 2 degree is more stable than 1 degree. Okay, primary is least stable carbocation. So student, now we will discuss about our next intermediate or next electrolytic product, which is carb anion. Carb anion. So as you all know now that carb anion is nothing but it is a carbon which is negative charge and has octet, complete octet or at electron, negative charge carbon with 8 electrons. So first of all we will see hybridization and shape of this carb anion. So hybridization of, for example, we are taking this carbocation anion CH3 minus. So the hybridization of this carbon is sp3 due to presence of 3 sigma plus 1 lone pair, and the shape will be, what will be the shape? Shape will be this type. Just like NS3. Hydrogen, hydrogen, and the shape will be trigonal pyramidal. So hybridization of carbon anion is sp3 and shape is trigonal pyramidal. Now we will see again stability of the carb anions. So first of all we will take ethyl carbon anion, again isopropyl, then
tertiary butyl carbanion. So as we can see now that more of the number of methyl group provides more electrons to carbon. यहाँ पर जो ये है हमारा 1 डिग्री प्राइमरी, यह है सेकेंडरी और यह है टर्शियरी कार्ब एनायन। यहाँ पर कार्बन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, सो इट डिड नॉट नीड एनी अदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको और इलेक्ट्रॉन्स की नीड यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 3 मेथिल ग्रुप है इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वजह से जो 3 डिग्री या टर्शियरी कार्ब एनायन है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा यहाँ पर, उसके बाद 2 डिग्री एंड उसके बाद 1 डिग्री। अगेन सी 3 डिग्री जो हमारा कार्ब एनायन है वहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप अटैच होने के कारण वो इस जो कार्बन है हमारा कार्बन है इसको और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस वजह से ये कार्बन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होने के कारण अनस्टेबल है, जबकि यहाँ पर केवल 2 ही मेथिल ग्रुप अटैच है जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जबकि इसके पास पहले से ही अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। इस वजह से ये 3 डिग्री से कम ज़्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ पर 1 डिग्री या प्राइमरी कार्ब एनायन में केवल एक ही मेथिल ग्रुप है जो इस कार्ब एनायन को, जिसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवा रहा है। इस वजह से जो प्राइमरी कार्ब एनायन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर होगा, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन विल बी 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। सो स्टूडेंट वी हैव डन द फिशन और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट के जब बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो कौन कौन सी स्पीसीज के बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वी विल नाउ सी एन ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के एक ओवरव्यू वापस से देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एक जो रिएक्टेंट होता है वो रिएजेंट से रिएक्ट करता है और रिएजेंट से रिएक्ट करके बनाता है प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी टेक्स प्लेस। नाउ आफ्टर अटैक ऑफ रिएजेंट के अटैक होने के बाद एक अनस्टेबल स्पीसीज बनती है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, विच इज एन अनस्टेबल स्पीसीज which after some changes gives product which is a stable species. So now what are the intermediates? Intermediates is nothing but we have seen the intermediate may be a free radical or carbocation or carboanion। ये तीनों ही इंटरमीडिएट्स होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ब्रेक होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर ब्रेकिंग फॉर्म्स प्रोडक्ट विच इज अ स्टेबल स्पीसीज। तीनों के तीनों ही अनस्टेबल होते हैं। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है हमेशा जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज कब होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज मैक्सिमम ज़्यादातर कहाँ पर होगा? ज़्यादातर व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन HNu सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं वो होमोलाइटिक क्लीवेज की ओर जाती है और फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स होता है। एंड इन कार्ब एनायन एंड कैटायन, कार्ब एनायन और कैटायन का फॉर्मेशन कब होगा? जब हमारा जो क्लीवेज होगा वो होगा हेटेरोलाइटिक। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज 2 टाइप्स में होगा, जिससे कि या तो कार्ब एनायन बनेगा या कार्ब कैटायन बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स अटैचिंग विद कार्बन इज हैव मोर और लेस, की जो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरा एटम जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या ज़्यादा। अगर ज़्यादा होगी तो कार्बोकैटायन बनेगा और अगर कम होगी तो कार्ब एनायन बनेगा। नाउ वी विल अगेन
see stability of free radical, which is 3 degree is greater than 2 degree is greater than 1 degree, and कार्बो कैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमेशा सेम रहता है, जबकि कार्ब एनायन की बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री. So now we have completed first step of organic chemistry, general organic chemistry. Now we will see some other topics like inductive effects, electromagnetic effects in next class. Till then, keep revise and keep watching. Thank you.